पॉइंट भी मिल गया। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, एक रे बनेगी। That is this way. If I join the camera center to some point A, that is this way. This way. Make sense? And I can find out C1 using null space. I can find out this A1 using solution of the linear system. And solution will give me infinity many solution. I will pick just one randomly. I will join that point with C1 and that will make a ray. My point is along that way. Where? I do not know. And actually this is exactly the information that we lost when we take the image. All the points that are coming from that ray, that line, they all map to one point. So how distant that point was along that ray, this is precisely the information that was lost in the process of imaging. So you cannot recover this through one camera. Make sense? Because one camera, when you back project the point, the camera say you, okay, that point was from this direction. From where? I don't know. All the points from this direction, they has to go here. Make sense? Now the second camera comes for your rescue. Now the second camera says that there is some point A2. Again, I solve this linear system. And I find some point, I solve this linear system, and I find out the camera center. The second camera says, this point is along that way. समझ आ रही? एक कैमरा कह रहा है, वो जो पॉइंट है ना जिसकी इमेज ये है, वो इस रे के अलॉन्ग है, कहाँ पे मुझे नहीं पता। दूसरा कैमरा कह रहा है, वो जो पॉइंट है ना जिसकी ये इमेज है, वो इस रे के अलॉन्ग है, कहाँ पे मुझे नहीं पता। They both intersect at a point in 3D. That's the point. क्योंकि अगर उस इंटरसेक्शन के अलावा आप देखें तो both the cameras they do not agree. So आपके पास दो लाइंस हैं 3D में, उनके इंटरसेक्शन निकाल लेंगे बेटा। Very simple. अगर by the way अगर ये simple नहीं है तो बताएं। Given the camera matrix 1, given the camera matrix 2, given the correspondence K, this point in image 1 is here in image 2, you can simply find out its 3D location by back projecting to array, then back projecting to array, and then finding out the intersection of those two rays. सही है जी? इसकी मैं छोटी सी आपको एप्लीकेशन बता आगे चलता हूँ। Motion capture setup. How many of you know mocap setup? It's the first question. ये जो आपने नीचे ऊपर दो इक्वेशन बनाई हैं, x1 लैम्डा वाली और x2 लैम्डा वाली, यही ना आपने दो रे बना दी हैं। These are the two rays. तो एक्चुअली हम लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं। Yes. I mean, solving these two equations means lambda. I want to find out point on line 1 that is also on line 2. Yes. So lambda की वो क्या वैल्यू होगी कि वो पॉइंट आए जो लाइन 2 में भी है। हाँ। So there are ways to solve that. तो x1 हमें पता है यहाँ से आपको, और x2 लैम्डा भी हमें पता है, और कैमरा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमने निकाल लिए हैं। Yes, we have equations of these two lines. Yes. Equations. हाँ. Now we want to find out how many steps should we move to reach that point. Yes. So there are ways to solve two equations of two 3D lines. Just find out their intersection. बेहतरीन होगा। Make sense? No. Yes, no. Okay, great. अच्छा, mocap setup एक है, motion capture setup. शायद आपने नोटिस किया होगा कि अब जो नई फिल्में आ रही हैं, मूवीज, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, एनिमेटेड मूवीज जो आ रही हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स की इमोशन है और जो उनके एक्शंस हैं, they are very close to human actions. Even expressions. ठीक है? लेकिन मैं फिलहाल एक्शंस की बात करूँगा. I assume most of you have seen Kung Fu Panda. How many of you have not seen that? Okay, that's a good movie to watch. So You should go. You should get out of the class. That's a good movie to watch. And go watch. उसमें जो उसका जो फर्स्ट वर्जन है, इन द अदर वर्जन्स एज वेल, उसमें जो फर्स्ट वर्जन है उसमें जो विलन साहब हैं उनकी मूव्स अगर आप देखें, I mean if you know some know-how of martial arts, they are very perfect moves. ठीक है? How they model that? एक तो तरीका ये है कि कंग फू वाला बंदा बिठाएं कंप्यूटर पे और उसको कहेंगे जनरेट करो,
ये सारी, तो वो मूव्स जनरेट करेगा। दूसरा जो तरीका ज़्यादा अच्छा वो करते हैं, वो ये करते हैं, दे हैव अ मोशन कैप्चर सेटअप। एक कमरा है जिसमें बेतहाशा कैमरे लगे हुए हैं, और वो कैमरे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं और इस तरह से लगे हुए हैं कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो अपनी जो भी पोज कर रहे हैं, उसका हर पॉइंट एटलीस्ट 2 कैमरा में विजिबल होगा। सो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कम से कम 2 कैमरा में, सो ये पॉइंट इन 2 में विजिबल है, ये पॉइंट इन 2 में विजिबल है। जब वो चेंज करेगा तो हर पॉइंट कोई से कोई 2 में विजिबल होगा। दैट्स अ सेटअप। अब जब बंदा वो लेके आते हैं, एक्टर उसको कहते हैं, जब उसको लेके आते हैं उसके ऊपर वो मार्कर्स प्लेस करते हैं। वो मार्कर्स इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाएबल होते हैं। मैं मिसाल में इस तरह से देता हूँ, यहाँ पे अगर नीला रंग लगाया तो यहाँ पे पीला लगा लें। वो रंग नहीं होते वैसे, वो खास किस्म के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए, यहाँ पे नीला है तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, और सारे रंग फर्क हो गए, सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश द कॉरेस्पॉन्डेंस। नीला यहाँ पे यहाँ है, और यहाँ पे ये नीला यहाँ पे, लाल यहाँ पे, इस इमेज में लाल यहाँ पे। सो हर पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डेंस आप निकाल सकते हैं थ्रू। मेक सेंस? अच्छा, जब उसके ऊपर वो मार्कर्स प्लेस कर देते हैं, सारे कैमराज ऑन हैं सारे, कोई एक वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके लिहाज से ये सारे कैमरास कैलिब्रेटेड हैं, यानी इन सब के कैमरा मैट्रिसेस आपको पता है। और वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, हाउ टू एस्टिमेट द कैमरा मैट्रिक्स। आप कैमरा लेके आए अपनी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं आपको एस्टिमेट करके, आई मीन देयर इज अ वे, वेरी क्विक वे, इट ऑल गोज टुवर्ड्स नल स्पेस अगेन, सो वी कैन डू दैट। सही, ये सारे कैमरास कैलिब्रेटेड हैं। जो ऑब्जेक्ट आया है ना, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने मूव करते रहना है, उसके पॉइंट से मूव करते रहना है, उसकी 3D लोकेशन फिक्स वर्ल्ड के लिहाज से पता नहीं है। समझ आ रही? आप उसकी 3D मोशन कैप्चर करना है। पॉइंट ये है कि जब ये खास किस्म की मूव परफॉर्म करता है तो इसकी बॉडी के कुछ पॉइंट्स दूसरे पॉइंट्स के रिलेटिव किस तरह से मूव होते हैं, सो दैट वी मॉडल दैट इन एनिमेशन, एंड दैट इज द रियलिस्टिक मॉडल। इसको कहते हैं फिजिकली रियलिस्टिक मॉडल। समझ आ रही? और ये मॉडल नॉट इवन दैट, वो अभी आप अगर मजीद अच्छे वो ज़्यादा देखें तो उसमें जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप अगर स्माइल करते हैं तो ज़रा 20 साल पहले के कार्टून जो हमने देखे हैं अपने दौर में, उनमें स्माइल करता हूँ तो सिर्फ फोन ऐसे करते टक खत्म, और कुछ भी नहीं होता था। अब आप स्माइल करते हैं, स्माइल करते हुए करेक्टर को देखें तो उसकी आइज थोड़ी सी बंद होगी, नाक थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, एक खास किस्म का एक्सप्रेशन है जो ह्यूमन एक्सप्रेशन होता है, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। वो एक्टर्स को लाते हैं जो मुंह को बड़े अच्छे तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं, उनके मुंह के वो काफ़ी सारे लगाते हैं एक्टर्स, और उनको बिठा देते हैं और फिर उनसे कहते हैं शाबाश, वही में ऐसे 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 करता है 2 साल, और फिर उसका देखते हैं, और उसको एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन पे जब वो मूव करता है तो क्या वो देखते हैं कि हाउ दीज पॉइंट्स दे एक्चुअली डिफॉर्म, एंड दैट इज द मॉडलिंग, दैट इज वन काइंड ऑफ मॉडलिंग दैट वी आर डूइंग। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, कमिंग बैक टू दिस 3D मॉडलिंग। अच्छा, अब जब हर पॉइंट कम से कम 2 कैमरास में विजिबल है तो वो हर पॉइंट का 3D रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और नॉर्मली जब हर पॉइंट का 3D रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट है लाल जो यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके मुझे नाउ XYZ कोऑर्डिनेट्स पता चल गए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर एक यहाँ पे है उसके पता चल गया, और हर फ्रेम में पता चल रहे हैं, यानी वो जैसे जैसे मूव कर रहा है हर फ्रेम में एक 3D, I can construct a 3D bag. So for example, the लाल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 9, 10, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे, so I can now reconstruct the full 3D, and now I can see how 3D is moving. समझ आ रही? Make sense? दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली जब वो फिक्स वर्ड से कर लेते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंटर डिफाइन करते हैं, उसके लिहाज से सबको मेजर करते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो करेक्टर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से काम करे, जब उसकी अपनी उन्होंने मेजरमेंट कर दी तो वो देखते हैं कि वो अपने किसी एक पॉइंट के लिहाज से पूरे पॉइंट्स कैसे चेंज हो गए। सो दे डिफाइन द ओरिजिन इन द ऑब्जेक्ट, एंड देन दे कंप्लीटली मॉडल हाउ द मोशन, हाउ दीस पॉइंट्स दे डिफॉर्म व्हेन एक्टर इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर मोशन। Make sense? And the underlying heart kind of building block is just this kind of thing. They are doing this triangulation. Make sense? Yes, no? Yes. Okay. So I will stop here. In the next lecture, inshallah, we will see कि जब आप एक कैमरा लेके आते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं तो वो जो आप ऐसे करके उसमें मैट्रिक्स देखते थे वो ऐसे करने का कोड किया, सही है? ओके,